Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, good morning. I hope you all are fine. This is your chemistry class and we are studying unit number 1, fundamentals of chemistry. Before going to today's topic, I will discuss some points. First of all, we will discuss atomic number. Do you know, students, what is atomic number? Most of the students know about the atomic number, but today I will revise again. So atomic number is the sum of the number of proton and neutron present in a nucleus of an atom is known as atomic mass. The sum of the number of proton and neutron. For example, carbon having 6 number of proton and 6 number of neutrons, so its atomic mass is 12. The next topic is molecule. Do you know what is molecule? The smallest particle of an element or compound which can exist independently. What is it? Which can exist independently. So the smallest particle of an element or compound which can exist independently on earth crust. For example, water molecule, and the formula for water molecule is H2O. The next is formation of molecule. How molecule is formed? A molecule is formed by the chemical combination of different atoms. A molecule is formed by the chemical combination of either the similar atom or the different atom. It is the smallest unit of a substance. यहाँ पर बात करेंगे कि मॉलिक्यूल आपके पास सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, और मॉलिक्यूल आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? सो मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और सिमिलर एटम. मे बी दीज एटम्स आर सिमिलर और मे बी डिफरेंट, ठीक है. अगर हम सिमिलर एटम की बात करें तो फॉर एग्जांपल H2, N2, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड O2, oxygen gas. And when we talk about the different atoms, then the example is H2O, CO2, etc. Now the last and most important point is substance. What is substance? Substance is a pure form of matter. Substance is a pure form of matter which can exist either in element, compound और molecules. अब substance जो है pure form of matter है जो कि exist करता है elements, compound या फिर हम कह सकते हैं molecule. Is it clear? So now moving towards today's topic. Today we will discuss about molecular mass and atomic mass. Formula mass, molecular mass and formula mass. So first of all we will discuss molecular mass. Students, open your books. आप साथ साथ बुक्स खोल दें. पेज नंबर 23. Before going to our topic, यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के हवाले से, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएं. एक बार फिर हम दोबारा पहले से इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम इसको देख सकते हैं. सो ज़रा सा यहाँ पे देखें. फॉर एग्जांपल ये हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है. इन सब 118 एलिमेंट्स में दो चीज़ें हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एटॉमिक नंबर. Atomic number is the number of proton or the number of electron present in an atom. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें कि ये हाइड्रोजन है, हैविंग एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। प्लेसिंग ऑफ एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स पे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप अपनी पहचान के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि आप कहेंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो यूजुअली पीरियोडिक टेबल में सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी जाती है, जो एलिमेंट की यहाँ थोड़ा सा बॉटम पे करके लिखी जाती है, उसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज एटॉमिक मास। प्लेसिंग ऑफ एटॉमिक मास जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। यूजुअली पीरियोडिक टेबल्स में सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास लिथियम है, हैविंग एटॉमिक मास 7, बेरिलियम एटॉमिक मास 9। अब आपसे कहा जाए कि पीरियोडिक टेबल से आप एटॉमिक नंबर फाइंड करें तो आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमेशा उसको उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एटॉमिक मास फाइंड करें तो आप हाईएस्ट वैल्यू उठाएंगे हमेशा, ठीक है। एटॉमिक नंबर के लिए आपने लोएस्ट वैल्यू एंड एटॉमिक मास के लिए आपने हाईएस्ट वैल्यू उठानी है, ठीक है। नाउ आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द मॉलिक्यूलर मास, पेज नंबर 23 फ्रॉम बुक। मॉलिक्यूलर मास से पहले हमने मॉलिक्यूल की बात की कि मॉलिक्यूल आपके पास क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब इसमें देखें कि आपके पास कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम की बात करते हैं कि कोई भी एटम केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट या हिस्सा क्यों लेता है। अब देखें आपके पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉनिक शेल है और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर 2 रूल्स, दैट इज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। व्हाट इज डुप्लेट रूल एंड व्हाट इज ऑक्टेट रूल? You know very well about the duplet rule and octet rule। हम क्लास में अच्छे से इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। सो हमारे पास क्या है कि डुप्लेट रूल वो रूल है थ्रू विच एटम गेन स्टेबिलिटी बाय मीन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट हम डाई को बोलते हैं, डाई मीन्स 2। जब इलेक्ट्रॉन बाय मीन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा देन दे विल ओबे डुप्लेट रूल। लेकिन अगर कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल को बाय मीन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो दिस इज ऑक्टेट रूल। तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज He हीलियम। हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है ये ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और ये डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हीलियम के लिए आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। देयर इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल विल बी कंप्लीट बाय मीन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपके पास देखें यहाँ पे कि ऑक्सीजन को और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। सो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एज अ रिजल्ट एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे विच इज वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in the molecule। यहाँ देखें कि relative atomic masses,
रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैसेज क्या है, एटम्स के एटॉमिक मैस, सिंगल एटम का एटॉमिक मैस। फॉर एग्जांपल कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मैस 12 AMU है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है। ये मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि कंपोज कर रहा है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब यहाँ देखें कि आपके पास हाइड्रोजन सिंगल एटम हाइड्रोजन का जो है इसका एटॉमिक मैस जो है वो 1 AMU है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 AMU, ठीक है। आपस में इनको हम कंबाइन करेंगे, इनका सम लेंगे, एज अ रिजल्ट जो सम आपके पास आएगा वो क्या है, मॉलिक्यूलर मैस। इज इट क्लियर? हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस? हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कैसे करेंगे? इन वन मॉलिक्यूल देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, दे may be similar or may be different. So we can calculate the molecular mass of a substance by adding relative atomic masses of the atom in one molecule of the substance. ठीक है, कि आपके पास देखें जैसे हमने बात की थी कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम की 2 आपके पास क्या है एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट और ऑक्सीजन 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम इन सब के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को काउंट करेंगे। सो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जहाँ पे आपने फाइंड करना है। बेसिकली आपके पास मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। फाइंड द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। The molecular formula of water is H2O. molecular formula आपके पास क्या है वाटर का? Yes, H2O. Now, how will we find molecular mass? हमने जैसे डेफिनेशन में कहा कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मैसेज को हमने सम अप लेना है या एटॉमिक मैसेज को हमने कंबाइन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इट मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू, आपने अपनी आसानी के लिए शुवेरमैन का इक्वेशन लाइक मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू H2 प्लस O एज इट इज। आपने फार्मूला को क्या कर देना है, ब्रेक करके एटम्स को सेपरेट करके लिख देना है, ठीक है। आप सिर्फ फार्मूला को ब्रेक करके एटम्स को सेपरेट लिखेंगे। सो मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू H2 प्लस O। 2 मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन के थे और एक ऑक्सीजन का था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज का, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पे आपने कैसे देखना है एटॉमिक मैसेज क्या है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। अब देखिए जैसे हमने बात की थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस की, तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो टॉप पे लिखा हुआ है इसका एटॉमिक मैस, दिस इज 1. Atomic mass of hydrogen is 1 AMU, 1 atomic mass unit, and the atomic mass of oxygen is 16 AMU. Is it clear? आपने भी जो भी असाइनमेंट आप करेंगी उसमें आपको कहा जाएगी एटॉमिक मैसेज आपने फाइंड करने हैं, तो आप इसी तरह से एटॉमिक मैस लेंगे, उनका सम अप करेंगे, ठीक है। सो मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। Here molecular mass is equal to H2 plus O2। ये आपने अपनी आसानी के लिए सम अप करने के लिए आपने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे हाइड्रोजन आपके पास है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मैस है वो 1 AMU है, ठीक है। सो आपने हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस पुट किया 1, टेकन होल्ड ट्वाइस हमने क्यों लिया, ब्रैकेट के बाद 2 क्यों लिया, इसलिए कि आपके पास 2 एटम्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के, तो एज इट इज आपने 2 को लिख देना, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस 16। इज इट क्लियर? नाउ सिंपल अरिथमेटिक, 2 1 इज 2 प्लस 16 प्लस 2 18 AMU। सो 18 AMU इज द एटॉमिक मैस मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड. आपने फेरिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने हैं. ठीक है. अब फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला आपके पास क्या है? Fe2O3. Fe2O3. दिस इज फेरिक ऑक्साइड. How you will find the molecular mass of ferric oxide? Same process as we discussed in a previous numerical. So let's start. Molecular mass is equal to, first of all you will make a equation, Fe2 plus O3. So Fe is iron, ferric is the short form of iron, so Fe is iron. ठीक है. Fe2 plus O3. Now putting the values of atomic masses of iron and oxygen. So the atomic mass of iron is 56 AMU and atomic mass of oxygen is 16. Iron की कितने atoms मौजूद हैं? 2 atoms. There are 2 atoms of iron. 56 taken whole twice plus oxygen आपके पास atomic mass 16 into atoms कितने हैं? 3. So simply हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 56 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 112 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48. सो जब आप 112 को 48 से प्लस करेंगे तो देन द आंसर विल बी 160 AMU. दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. आई होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट टर्म इज formula mass. Next is formula mass. यूजुअली मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है. प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डिफरेंस. ठीक है. आपने उसी तरह से एटॉमिक मासेस लेने, उसी तरह से कंबाइन करके सम अप लेके एटॉमिक मास यूनिट में आपने एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ले लेने. ठीक है. बट द डिफरेंस इज कि एटॉमिक मास जो है मॉलिक्यूलर मास जो है ये आप लेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए और फार्मूला मास आप लेंगे आयंस के लिए. ठीक है. कंपाउंड्स के लिए जहाँ पे आयनिक कंपाउंड होंगे, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. इसलिए हम लेंगे. ठीक है. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द फार्मूला मास. सो फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एटॉमिक masses ऑफ आयंस, दैट इज एटम. आयंस भी आपके पास एटम ही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जब आपके पास एटम कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो ये आपके पास आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस लिए आयंस में, कैसे आयंस में कन्वर्ट होता है कि जब आपके पास कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को, जैसे हमने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड में तो कोई भी एटम अपना आयन दूसरे एटम को डोनेट करेगा तो जब डोनर एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायन. किसी भी एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटायन होगा. और जब आपके पास कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिसीव करता है, तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है. जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है उसको हम एनायन बोलते हैं. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि वो हम देख सकते हैं. सबसे पहले आपके पास देखें सोडियम एंड क्लोरीन विल रिएक्ट विद ईच अदर. जब सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11. फर्स्ट शेल composed of 2 electrons, second shell composed of 8 electron and third having only 1 electron. In case of chlorine, their atomic number 17. The first shell possesses 2 electrons, second shell possesses 8 electrons, third shell possesses also 7 electrons. ठीक है. तो अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की जैसे हमने बात की थी तो सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए एंड क्लोरीन required only 1 electron to complete their octet. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा या सोडियम मजीद 7 गेन करेगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई सोडियम को
7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट सोडियम क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन जाएगा, डोनर एटम बन जाएगा। तो सोडियम जब अपना आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन देगा तो आउटरमोस्ट शेल रिमूव होकर सोडियम पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी, सोडियम आयन विच इज नोन एज कैटायन। एंड क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाएगी विच इज क्लोरीन आयन एंड आल्सो नोन एज एन आयन। तो इसी से हम डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे कि फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड्स। कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोई भी एटम्स या आयंस प्रेजेंट हैं तो उसके एटॉमिक मास की सम को हम फार्मूला मास कहेंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स। फाइंड द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने कहा जैसे कि फार्मूला मास सेम उसी प्रोसेस से फाइंड किया जाएगा जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया। कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चीज चेंज है, एलिमेंट्स ये भी पीरियोडिक टेबल से उठाने हैं, वो भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। बस डिफरेंस ये है कि फार्मूला मास कंपाउंड्स के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होगा जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, तो एज ए रिजल्ट आपके पास मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं। और फार्मूला मास में आयोनिक कंपाउंड जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom. So now talk about the examples. The first example is find the molar formula mass of sodium chloride. So now formula mass of sodium chloride. So first of all we discuss the molecular formula. So the formula for sodium chloride is NaCl. Formula is NaCl. सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाएंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाई थी। सो सोडियम प्लस क्लोरीन, यहाँ पर 1 सोडियम है 1 क्लोरीन है, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सोडियम प्लस क्लोरीन। 1 सोडियम है 1 सोडियम है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ना लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप सोडियम प्लस क्लोरीन लिखेंगे, देन इनके एटॉमिक मैसेज पुट करते जाएंगे, ठीक है। सो 1 इंटू सोडियम प्लस 1 इंटू क्लोरीन, 1 सोडियम है 1 क्लोरीन है, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU एंड द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU। आपने पीरियोडिक टेबल से देख लेना, ठीक है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अवेलेबल ना हो तो आप बुक से पेज नंबर 67 से देख सकते हैं, ठीक है। सो 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 35.5. So the answer is 58.8 AMU. When you combine 23 plus 35.5, then the answer will be 58.5 AMU. Now moving towards the example number 2. Find the formula mass of NH4 taken on twice SO3 ammonium sulfate. NH4 taken on twice SO3. अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला कम्प्लेक्स है, ठीक है। जब आपके पास फार्मूला कम्प्लेक्स आएगा तो जब आपने डिफरेंट एटम्स को लेकर एटम्स के नंबर्स को उनके साथ मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मैसेज को कंबाइन करके आखिर में सम अप करके उनको लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास NH4 टेकन ऑन ट्वाइस है, तो टेकन ऑन ट्वाइस जो है ये ब्रैकेट के बाद 2 है, ये अंदर सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा एज इन मैथ्स। सो आपके पास जो है जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो 2n बन जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक मास 14 AMU और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 नाइट्रोजन, तो आपने 2 एज इट इज लिखना और नाइट्रोजन की जगह उसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो 14 AMU विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28 AMU। एंड हाइड्रोजन जब आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो देन आपके पास आएगा 4 हाइड्रोजन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 हाइड्रोजन।
ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 1 इज 8. So atomic mass of 8 hydrogen is 8 AMU. Now come towards the sulfur. Capital S represents sulfur. There is only one atom of sulfur. So sulfur possesses atomic mass 32 AMU. 32 1 is 32. Next, oxygen. There are 3 atoms of oxygen. So 3 multiplied by oxygen is equal to 3 into 16. So 3 multiplied by 16 is equal to 48 AMU. So when we will combine all the atomic masses, then we will get formula mass is equal to 116 AMU. ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपके पास कुछ पॉइंट्स है, हमने एग्जांपल्स देखे. इसी तरह से आपके पास किसी भी किस्म का फार्मूला आता है तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मैसेज को लेकर कंबाइन करके उनका सम अप लेकर आप मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ समिंग अप द होल टॉपिक, आपने क्या पढ़ा कि जो आपको कोई भी पॉइंट कंफ्यूजन हो तो हम दोबारा से इसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज molecule is the smallest particle of an element or compound which can exist independently in earth crust. Okay, the smallest particle of an element or compound which can exist independently, for example water molecule, carbon dioxide, or glucose, C6H12O6. The next is atomic mass. Atomic mass, the sum of the number of proton and neutron are called atomic mass. For example, carbon having 6 number of proton and 6 number of neutron, so its atomic mass is 12. Next is molecular mass. Molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in a molecule. So next is, for example, water molecule possess 18 AMU atomic mass, 18 AMU, and its molecular mass is 18 AMU. And the formula for example ethene possess 30 AMU molecular mass. The next one is formula mass. Formula mass is the sum of the atomic masses of atoms present in the formula unit of an ionic compound. What is the difference between molecular mass and ionic mass, formula mass? There is a difference that molecular mass is used for molecules and formula mass is used for ionic compounds. So now come towards the home assignment. आपने जैसे एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व की हैं तो एज इट इज सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ आपको मैंने कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसका आपने फार्मूला मैस फाइंड करना है. ठीक है, सेम एज इट इज जैसे आपको लेक्चर में समझाया गया. ठीक है, द फर्स्ट वन कंपाउंड इज KCl, पोटाशियम क्लोराइड, KCl. ठीक है, पोटाशियम एंड chlorine, it's potassium and chlorine. The second one is aluminum chloride. Aluminum chloride, Al represents aluminum and Cl chlorine. Next is sodium carbonate, Na2, this is sodium, and C carbon or oxygen. Is it clear? So आपने क्या करना है, विद इन टाइम आपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है. एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आपने जो अप्रैल का और मई का होमवर्क जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया अभी तक या कॉलेज को रिटर्न नहीं किया चेक करने के लिए, सबमिट नहीं किया आपने, तो काइंडली आप होमवर्क अपना जल्दी से करके सबमिट कर दें ताकि जो है हम आप वो होमवर्क चेक करके आपको अच्छे से ग्रेड्स दे सकें. अल्लाह हाफिज़.